السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتاح العربیہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ 5 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے اسماء اشارہ کو جو ہے مبتدا کے طور پر جانا۔ دوسرے سبق اور تیسرے سبق میں ضمائر کو جو ہے مبتدا کے طور پر جانا، اور چوتھے سبق میں جو ہے 2 اسم کے ذریعے ایک مبتدا اور ایک خبر بنا کر جملہ بنایا گیا۔ اور 5ویں سبق میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی چیز پر الف لام نہ ہو، کسی اسم عام پر الف لام نہ ہو، تو الف لام نہ ہو تو اس کا ترجمے کے شروع میں کوئی یا ایک لگاتے ہیں، اور الف لام آ جائے تو یہ دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں، اور تنوین بھی چلا جاتا ہے الف لام آنے کے بعد۔ اب اس سبق میں مصنف علیہ رحمہ ایک اہم موضوع کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اس کو طلبہ عزیز اچھے سے سمجھیں۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا ہو تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوگی کہ حروف شمسی کیا ہوتے ہیں اور حروف قمری کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ سبق میں مصنف نے سمجھایا ہے تو ہم اس کو بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو حروف شمسی اور حروف قمری 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ ان کیا چیز ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہاں پر نیچے لکھا ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں طلبہ کو یہ بتایا جائے کہ عربی کے 14 حروف قمری ہیں، جو یہ ہیں: الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، واو، ہا، یا۔ یہ 14 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان پر الف لام لگ جائے تو الف لام دونوں کا بھی تلفظ ہوگا۔ جیسے مبراتن ہے، اس پر الف لام لگ جائے تو اس کا پڑھیں گے ہم المبرات، یعنی الف بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے مولانا، ہم کو سمجھ میں نہیں۔ تو ابھی ایک سیکنڈ مجھے دے دیں کہ ہم حروف شمسی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا حروف قمری۔ تو ایسے 14 حروف ہیں، یہ 14 حروف ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اگر آپ نے جو ہے قاعدے میں یاد کر لیا، قرآن کریم کے آپ جو ہے مستقل تلاوت کرتے رہتے ہو، تو آپ کو یہ 14 حروف معلوم ہوں گے۔ اب دوسرا حروف شمسی، وہ یہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ ان پر الف لام آئے گا تو صرف الف کا تلفظ ہوگا، لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ جیسے دفترن سے الدفتر، الدفتر، یہ ہے شمسی۔ اب یہاں پر الف تو پڑھو گے آپ، لیکن لام پڑھا نہیں جائے گا، سیدھا یہ دال پڑھا جائے گا جو لفظ ہے۔ تو ایسے الفاظ جس میں لام نہیں پڑھا جاتا، ڈائریکٹ وہ لفظ پڑھا جاتا ہے، الف لام شروع میں لگنے پر لام نہیں پڑھا جاتا، ڈائریکٹ وہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ جس میں الف بھی پڑھا جاتا ہے اور لام بھی پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف قمری کہتے ہیں۔ حروف قمری بھی 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ اگر آپ کو یہ حروف یاد نہیں ہیں تو آپ ان کو لکھ لیں، لکھ کر یاد کر لیں، اور یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اب سبق کو ہم آگے لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم سبق کو دیکھتے ہیں۔ الدرس السادس، 6واں سبق، الدفتر۔ تو یہ آپ 2 چیزیں غور کر لینا۔ الدفتر تو یہ ہو جائے گا حروف شمسی، ٹھیک ہے؟ پہلے ادھر دیکھیں گے۔ المبرات، لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا قمری۔ القلم، یہ ہو جائے گا قمری۔ القرآن، یہ ہو جائے گا قمری۔ الکتاب، یہ ہو جائے گا قمری۔ السبورت، یہ ہو جائے گا شمسی۔ السیارت، یہ ہو جائے گا شمسی۔ المکتب، یہ ہو جائے گا قمری۔ التفاح، لام نہیں پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا شمسی۔ الرسالت، لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا شمسی، ٹھیک ہے نا؟ تو سبق میں کیونکہ یہ چیز سکھائی گئی ہے تو آپ کو اس سبق میں اس چیز پر بھی توجہ دینی ہے۔ اور دوسرا جو پچھلے سبق میں ہم نے مبتدا خبر کے جملے بنائے ہیں، وہی یہاں پر بھی بنائیں گے۔ جیسے پہلا جملہ ہے الدفتر جمیل، ٹھیک ہے نا؟ دفتر کا ترجمہ ہوتا ہے کاپی، جمیل کا ترجمہ ہوتا ہے خوبصورت، اور کیونکہ یہ مرکب مفید ہے تو ترجمہ ہو جائے گا کافی خوبصورت ہے۔ یہ ہے کیا سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جملے مفید ہے، مرکب مفید ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کو ہے آخر میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر المبرات سمینت، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں باتیں بیچ میں اہم آئے گی، سبق کو اسکپ نہ کریں، بعض باتیں جو ہے اتنی باتیں کور کر کر آئے گی انشاءاللہ۔ المبرات، مبراتو کہتے ہیں پینسل تراش کو، پینسل تراش یا شارپنر، ٹھیک ہے؟ سمینت، قیمتی ہے۔ اس کے بعد آئے گا القلم،
हिंदी, ठीक है। अलकलम बोले तो कलम पेन, हिंदी बोले तो हिंदुस्तानी, बोलते ना मेड इन इंडिया, वो हिंदुस्तानी है। उसके बाद अल कुरान, ये पीछे भी आपको आ गया है। किताब, किताब, तो कुरान किताब है, ठीक है। अल किताब, किताब आ गया। नाफिउन, नाफिउन आ गया, तो किताब नाफे यानी मुफीद है। असबूरतु, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद क्या आ गया, जदीदतुन, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, तख्ते सयाह भी बोल सकते हो आप, ब्लैक बोर्ड, जदीदतुन नया है। उसके बाद असैयारतु, सैयारतु कहते हैं कार को, सरीअतुन कहते हैं तेज रफ्तार को। तो सैयारतु, असैयारतु कार तेज रफ्तार है, कार तेज रफ्तार है, ठीक है ना। उसके बाद है अल मकतब, मेज, तवील लंबा, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, मेज लंबा तवील है, ठीक है। उसके बाद है अतुफ़ाहु और लजीजुन, तो तुफ़ाह, अतुफ़ा का तर्जुमा हो जाएगा सेब, एप्पल। लजीजुन का तर्जुमा हो जाएगा लजीज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अर रिसालतु, यहीं लिख देंगे। और सारतुन, ठीक है। रिसाला यानी खत, खुशकुन है, खुशकुन बोल तो खुशगवार है, अच्छा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है, अभी आगे भी सबक है, तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है, ये मुजक्कर है, मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर आएगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी, मुब्तदा मुजक्कर खबर मुजक्कर, ठीक है। ये मुजक्कर की मिसालें देख लीजिए। उसके बाद मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी, मुब्तदा मुअन्नस खबर भी मुअन्नस, ठीक है। मुजक्कर मुजक्कर और मुअन्नस मुअन्नस, तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि मुब्तदा अगर मुजक्कर होगा तो खबर भी मुजक्कर आएगी, मुब्तदा मुअन्नस होगा तो खबर भी मुअन्नस आएगी। मुब्तदा जो है मारिफा होता है, या तो कोई सी चीज का नाम होगा या उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, और खबर नकीरा होगी, खबर क्या होगी, नकीरा होगी। तभी इस जुमले के आखिर में हम है लगाएंगे, तभी इस जुमले के आखिर में हम है लगाएंगे। वरना जो है दफ्तरुन भी नकीरा रहता और जमीलुन भी नकीरा होता तो तर्जुमा इस तरीके से नहीं होता था जो तर्जुमा यहाँ किया गया है। वो आगे के असबाक में आएगा तो जब उस चीज को हम तफसील से इंशाल्लाह देखेंगे। अब चलें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लुअबतु, ठीक है। अल्लुअबतु, गुड़िया को कहते हैं महबूबतुन, महबूबतुन उर्दू में महबूबतुन, ठीक है ना। थोड़ा ये देख लें कि लिखने में जो है बाज़ वक़्त मुझसे स्लिप ऑफ पेन हो जा रहा है, तो उसको आप किताब, बात जो मैं कह रहा हूँ असल होगी, लिखने में कुछ मिस्टेक होगी तो आप इसको नजरअंदाज कर दोगे। तो लुअबतु हो जाएगी गुड़िया, महबूबतुन बोल तो पसंदीदा, गुड़िया पसंदीदा है। अलवर्दतु, वर्दतु कहते हैं गुलाब को। हमराउ, हमराउ कहते हैं सुर्ख, तो गुलाब सुर्ख है। देखिए कलर्स वगैरह के लिए जो मुअन्नस लाएंगे तो उसमें आखिर में अलिफ और हमजा आएगा, मुजक्कर होगा अहमर और मुअन्नस होगा हमराउ, तो इसलिए यह हमराउ मुअन्नस है। उसके बाद है अल हदीक़तु, अल हदीक़तु, हदीक़तु पार्क और बाग को कहते हैं। कबीरतुन, कबीरतुन कहते हैं बड़े को, तो तर्जुमा हो जाएगा कि बाग बड़ा है, बाग बड़ा है। उसके बाद आ गया अल उस्ताद, ठीक है, उस्ताद। अतूफुन कहते हैं मेहरबान, ठीक है, तो उस्ताद मेहरबान है। उसके बाद आ गया अल हक़लु, हक़लु कहते हैं खेत को। और अखजरु आ गया, तो अहमरु के वजन पर है, तो हक़ल क्योंकि मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर लाएंगे, तो खेत सर सब्ज है यानी हरा है। उसके बाद आ गया अतिलमीजु, तिलमीजु कहते हैं शागिर्द को। उसके बाद आ गया मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन कहते हैं मेहनती को, तो शागिर्द मेहनती है, ठीक है ना, मेहनती है। उसके बाद है अस्साइकु, साइकु कहते हैं ड्राइवर को।
बारी उन कहते हैं माहिर को। तो ड्राइवर माहिर है। तो यहां पर कहां से यह है का तर्जुमा आ रहा है? क्योंकि ये दो लफ्ज मिलकर एक मुरक्कब मुफीद बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली है का तर्जुमा आ जा रहा है। उसके बाद है अल-हाफिलतु। अल-हाफिलतु बस को कहेंगे, सफराउ सफराउ कहेंगे जर्द पीली। तो बस जर्द है या पीली है, यानी येलो। तो इसी तरीके से हम इस मशक को करेंगे। अब आगे देखते हैं, यहां से लिखना है अस-सिजिल्लु। ठीक है, तो यहां पर भी वो चीज को ध्यान में रख लें, सिजिल्लु ये शमसी होगा क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, कमरी होगा लाम अल-क़ितार में पढ़ा जाएगा, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अस-सिजिल्लु सगीरुन, यानी रजिस्टर छोटा है, सगीरुन छोटा। अल-क़ितार रेलगाड़ी ट्रेन, वाकिफुन खड़ी है। तो रेलगाड़ी या ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है ना, वही वाली। अल-महत्ततु कहेंगे रेलवे स्टेशन। अल-महत्ततु नजीफतुन, नजीफतुन कहेंगे साफ सुथरे को। तो स्टेशन लिख सकते हैं हम इसको, स्टेशन साफ सुथरा है। अशजरतु दरख्त हो जाएगा। ठीक है, खज़राउ हरा भरा हो जाए, हरा हो जाएगा। तो दरख्त क्या है? हरा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अल मदरसत। एक सेकंड, अल मदरसतु करीबतु। ठीक है, मदरसा नजदीक या करीब है। उसके बाद आया अल मस्जिद बाईद, मस्जिद दूर है। उसके बाद आ गया अल हुजरतु। ठीक है ना, ये हाँ है। ठीक है, मुअन्नस है तो खबर मुअन्नस लाई गई। वासिअतुन तो कमरा कुशादा है, वसी है। अल मतारु कहेंगे एयरपोर्ट को। जज्जाबुन कहेंगे पुरकशिश को। तो एयरपोर्ट और हवाई अड्डा भी कहते हैं ना, पुरकशिश है। ठीक है ना, अट्रैक्टिव, पुरकशिश है। तो यहाँ पर सबक हमारा मुकम्मल होता है। अब हम मश्क की तरफ जाएंगे, तो मश्क में मैं आपको तफहीम में मश्क कर दूंगा, आप मश्क खुद करें और खुद कर कर जो है उसको भेजें। देखिए मश्क में क्या है, ब्रैकेट में दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज लगाकर जुमले को मुकम्मल कीजिए। बात मैंने समझा दी थी कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर आएगा, मुअन्नस के लिए मुअन्नस आएगा। तो अल मतारू आपको तर्जुमा भी करना है। अल मतारू बाईदुन या बाईदतुन, जब इसके आखिर में गोलतानी है, ये मुअन्नस नहीं है, तो इसके आखिर में भी हमको गोलता नहीं होना चाहिए। तो बाईदतुन नहीं आएगा, बाईदुन आएगा। अल वरकु अबयज़ु अखज़र, वरकु कहते हैं कागज को, तो कागज लोगे तो अबयज़ु हो जाएगा सफेद। वरकुन जो है पत्ते को भी कहते हैं, अगर पत्ता मानोगे तो अखज़र आ जाएगा। अब ये तर्जुमे पे डिपेंड होगा, क्योंकि अभी तक हमको अल वरकु का तर्जुमा कागज सिखाया गया, तो उस हिसाब से हम अबयज़ु लेंगे। अल हक़लु, हक़ल कहते हैं खेत को। असफरु पीला, जर्द, अखज़र हरा, तो हम हरा कहेंगे। अदरसु अब सबक आपको आसान दिखा तो सहलुन आसान, सअबुन मुश्किल हो जाएगा, तो आपको जो दिखा वो लिखे, हम तो सहलुन लेंगे। ठीक है ना। अर्रजुलु मर्द, ठीक है ना। नाइमुन नाइमतुन मर्द क्योंकि मुजक्कर है तो नाइमुन भी आएगा, नाइमतुन नहीं आएगा। अज़्ज़हरतु बोलता आ गया, फूल। मुतफत्तिहुन मुतफत्तियतुन खिला हुआ, खिला हुआ, दोनों का तर्जुमा वही होगा। ज़हरतु का आखिर में गोलता है तो हम गोलता वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे। अल मतरु बारिश, नाजिलुन नाजिलतुन नाजिलुन लेंगे। अल फराशतु फर्श पर जो बिछाते ना, फराशा। जमीलुन जमीलतुन जमीलतुन आएगा। अन्नाफिजतु खिड़की, बोलता है आखिरी में, तो मफ्तूहतुन आएगा, मफ्तूहन आएगा, मफ्तूहतुन आएगा, खुली हुई है। अलकित्ततु बोलता है, बिल्ली को कहते हैं। आकिलुन आखिलतुन तो आखिरी में बोलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बोलता आएगा, आखिलतुन आएगा। तो इसके साथ आप तर्जुमा भी करें ताकि आपको तर्जुमे की मशक हो जाए। उसके बाद है अत्तबीब डॉक्टर। ठीक है ना। जमीलुन बारियुन, देखो खूबसूरत भी बोल सकते हैं, बारियुन भी बोल सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आप डॉक्टर की खूबसूरती देखकर नहीं जाते हो, उसकी महारत देखकर जाते हो। तो आप कहोगे बारी, आप कहोगे बारी, आप कहोगे बारी, मेहनती है। अल मुमर्रिज़तुन, जुमले के एतबार से दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मीनिंग के असल जो मतलब होता है, डॉक्टर के लिए खूबसूरती नहीं देखते हैं, उसकी एक्सपर्टीज देखते हैं। अल मुमर्रिज़तु, नर्स, ठीक है। कासियतुन लय्यिनतुन, अब आपका साबका दोनों हिसाब से पढ़ सकता है। कासियतुन ये तंग संग दिल, सख्त मिजाज की, लय्यिनतुन नरम दिल। तो आम तौर पर जो मुमर्रिदा होती है, नर्सें होती है, वो नरम दिल की होती है, पेशेंट को वो केयर करती है, ठीक है ना। सख्त दिल की होंगी तो सही से केयर नहीं कर सकेगी, तो मुमर्रिदातुन के साथ लय्यिनतुन आएगा। लेकिन आप कासियतुन लिखना चाहें तो जुमले के एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से तो दुरुस्त है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बाब, मिफ्ताहुल अरबिया में सबसे ज्यादा जो आपको मश्क होगी वो अरबी में तर्जुमा करने की होगी, ठीक है। देखो, जो जबान हम सीख रहे हैं उससे अपनी मादरी जबान में तर्जुमा करना आसान है, क्योंकि मादरी जबान हमको आती है, और वो अल्फाज देख लिए, अल्फाज का पैटर्न देख लिया, और उस हिसाब से हम अरबी में उर्दू में तर्जुमा कर ले सकते हैं। लेकिन मादरी जबान से अरबी में, या मादरी जबान से अगर मसलन आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो इंग्लिश में तर्जुमा करना वो दुश्वार होता है। वहां पर आपको फोकस करना होगा, ये क्या बन रहा है, इसको कैसे लेंगे, इस तरीके से। तो मिफ्ताहुल अरबिया में क्योंकि आपको अरबी जबान सिखलानी है, इसलिए जैसे जैसे असबाक आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अरबी में तर्जुमा कीजिए की मशकें ज्यादा होती जाएंगी। तो आप खुसूसी तौर पर इन अरबी में तर्जुमा कीजिए मशकों की प्रैक्टिस खुद करेंगे, किसी गाइड की मदद नहीं लेंगे, किसी यूट्यूब वीडियो की मदद नहीं लेंगे, ठीक है ना। तफहीम के लिए आप सुन लें, मैं भी कोशिश करता हूँ तफहीम करूं और बाद में बता दूं कि समथिंग इज बेटर देन नहीं, कुछ ना आने से कुछ आना अच्छा होता है। लेकिन बस इसी पर आप तकिया कर लोगे तो फिर आपके पास सलाहियत नहीं बनेगी। तो खुदारा आप क्या करें कि इन मशकों को खुद करें। आप कर सकते हैं, इसलिए इस सबक में ये मशक है। अगर आप नहीं कर सकते तो ये मशक नहीं होती। हाँ, होगा कि किसी तालिब इल्म को ये मशक थोड़ी मुश्किल दिखेगी, किसी को जो है उसके मुकाबले में थोड़ी कम मुश्किल नजर आएगी, लेकिन बिल्कुल आसान मशक नहीं होगी, ठीक है ना। थोड़ा तो आपको उसमें आजमाया जाएगा, बिल्कुल आसान है। आप देख ले, मैदान खूबसूरत है। अब मैदान की अरबी पीछे देख लें, मसलन जो है अल मल अबू मैदान की अरबी है, अल मल अबू मैदान की अरबी है। खूबसूरत की अरबी क्या है? जमील, खत्म बात। मदरसा पीछे भी आया, मदरसे की अरबी अल मदरसतु, ठीक है। बड़े की अरबी क्या होगी? मदरसा मुजक्कर है, मुअन्नस है, मुअन्नस है तो मुअन्नस है तो मुअन्नस लेंगे, कबीरतुन, अल मदरसतु कबीरतुन। उसी तरह खेल का कुशादा है, कलम छोटा है, दर्जगाह दूर है, स्टेशन करीब है। ये तमाम चीजों की मश्क खुद आप करोगे, और जिसके आपको नहीं आ रहा आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। आपने मश्क की है, आप जो है यूट्यूब पर आजकल जो है पोस्ट करने का ऑप्शन है आपको, तो मेरे चैनल पर जाकर आप पोस्ट करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके होमवर्क को चेक करूं और जो है उसको दुरुस्त कर दूं। और आपको जो सवाल हो ना, ये सबक हो सकता है कि मैं आज रिकॉर्ड किया हूं और आप एक साल के बाद देखें, तो सवाल को थोड़ा मुकम्मल कमेंट में लिखें, ताकि मुझे आपके सवाल को समझने और उसके जवाब देने में आसानी हो, ना कि मुझे फिर वीडियो देखना पड़े कि मैंने क्या बात कही थी और आप किस हिसाब से सवाल करें। तो सवाल जो है अपनी कमेंट में आप मुकम्मल लिख देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपकी मदद कर दूंगा। और किसी तमरीन की किसी पर आपको डाउट हो तो आप लिखकर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको चेक कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि